friends, today welcome to my channel Knowledge Point। आज हम आपके लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लाए हैं फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक ऑफ क्लास 10th फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन and curriculum CBSE। Here question number 1, just I read and try to make you understand। 1/4 of herd of camels, camels का झुंड है, was seen in the forest। Twist of the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river। Find the total number of camels। Students, for this question, just while I am going to start to solve this, and first of all we have to consider the total number of camels। Let total number of camels be x। Okay, now the number of camels okay, seen in the forest, okay, 1/4, that means 1/4x, and the twist the square root of the herd had gone to the mountain, that means number of camels, okay, gone to the mountains is twist the square root of the total number of camels। 15 camels seen on the bank of the river, number of camels, okay, seen on the bank of river, this is 15 in number, exactly in number, and hence total number of camels is equal to 1/4x plus 2 root x plus 15। As you know, according to hypothesis, according to questions, okay, total number of camels x, so 1/4x plus 2 square root x plus 15 is equal to x। बट यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है तो हमने रूट एक्स इसको हमने क्या मान लिया, रूट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, तो ये y हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, नॉट सॉरी, लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया 1/4 y² प्लस 2 एंड अंडर रूट वाई स्क्वायर, दैट मीन्स y प्लस 15 इक्वल टू वाई स्क्वायर। सॉल्व इट, 4 से सबको मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 4 2 = 8y प्लस 60 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। यहाँ से हम इनके सारे टर्म्स को राइट साइड में जाकर शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, साइन -y² -8y -60 इज इक्वल टू 0। दिस वन क्या आ जाएगा आफ्टर फाइनलाइजेशन, 3y² -8y -60 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट 360 को मल्टीप्लाई करेगा तो -180, दैट मीन्स 18 और 10 में इसको स्प्लिट करेगा। ओके, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3y², okay, just 3y² minus 18y plus 10y minus 60 is equal to 0।
here 3y taken common, y minus 6 plus 10 taken common, y minus 6 is equal to 0. We have 3y plus 10 and y minus 6 is equal to 0. Either 3y plus 10 0, so y equal to minus 10 upon 3. So as you know students कि हर नंबर ऑफ जो कैमल्स है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. एज नंबर ऑफ कैमल्स कांट बी इन फ्रैक्शन, सो y का वैल्यू -10/3 रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टिंग. ओके, सो जस्ट हम दूसरे पार्ट y-6, नाउ y-6 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6 और y दैट मीन्स y इज इक्वल टू समवेयर I considered here this one. This is equation 1. So number of camels, here number of camels in the herd is equal to x square y square, x equal to y square is equal to 6 का square 36. So students, there are total 36 camels in the herd. Now students, question number 2 कहता है, O girl, out of group of swans 7/2 times the square root of the number are playing on the shore of a bank. The 2 remaining ones are playing विथ अमरश फाइट. एक प्रकार का लड़ाई होता है जो वाटर में ये लड़ते हैं स्वान्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स. लेट टोटल नंबर ऑफ स्वान्स bx, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स की गिनती जो है x के रूप में किया जाता है अननोन टर्म. आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वान्स 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर. सो नंबर ऑफ द स्वान्स प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए बैंक, on the shore of a bank. shore means किनारा, तट. ये है 7/2 is equal to 7/2 root x. And two remaining ones are playing with amorous fight, okay, in water. So according to question क्या हो जाएगा? ये जो टोटल शोर पर जो है प्लेइंग कर रहे हैं, ऑन द शोर ऑफ द बैंक जो प्लेइंग कर रहे हैं 7/2 रूट एक्स, एंड जो रिमेनिंग 2 है ये प्लस होगा और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्वान्स के इक्वल होगा. यहाँ से हम लेट एक्स को एक परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं इन वेरिएबल्स. x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो रिज़ल्ट आएगा 7y/2 + 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. 2 से सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा. दैट मीन्स या इस तरह से करेंगे हम 7y + 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. यहाँ से 2y² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7y + 4. यहाँ से 2x² - 7y - 4 इज इक्वल टू 0. स्प्लिट करेंगे 2x² -
8y प्लस y माइनस 4 0. अब यहाँ से 2 what is happening, somewhere it is wrong. Okay, 2y square here, 2y square. Okay, now 2y कॉमन लेंगे, 2y और y माइनस 4 प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So 2y plus 1 and y minus 4 is equal to 0. अब यहाँ से दो जो है सेट का प्रोडक्ट 0 है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेट y का वैल्यू क्या मिलेगा, आइदर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1/2. फ्रैक्शन में तो स्वान का नंबर हो नहीं सकता है, तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा. इट इज रिजेक्टिंग. ओके, इनएडमिसिबल. दूसरा है और y माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 4. इट इज एडमिसेबल. ओके, इट इज एडमिसिबल. एडमिसिबल. तो इस तरह से y का वैल्यू मिलने से हमारे पास ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वान्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्वान्स ये आएगा क्या, x. और x क्या आएगा, x आएगा y स्क्वायर. ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं. और y का वैल्यू 4 आया तो 4 स्क्वायर यानी 16. That means what is the total number of swans? So total number of swan are 16. Okay. Question number 3 कहता है the speed of a boat in a still water is 8 km/h. It can go 15 km upstream and 22 km downstream in 5 hours. Find the speed of a stream. आपने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कंसेप्ट को जाना है. यहाँ पर आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लो. तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km/h और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 8 km/h. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 km/h. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब अपस्ट्रीम के लिए जब हमें जाना होता है, दैट मीन्स कि माइनस करना होता है. बोट माइनस स्ट्रीम, दैट मीन्स अप स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, ओके, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा बोट का स्पीड और माइनस स्ट्रीम का स्पीड. अगेन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, in downstream is equal to 8, ओके, माइनस डाउन स्ट्रीम नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा. अब हमारे पास है ये दिया हुआ कि अप स्ट्रीम में जाता है 15 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है 22 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन है 5 आवर्स. तो एज वी नो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब यहाँ से दोनों अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम को प्लस करके और ये टोटल 5 आवर्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ओके। डाउन स्ट्रीम, अब देखिए यहाँ इट कैन गो 15 अप स्ट्रीम, तो 15/8 माइनस एक्स एंड 22 डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स 8 प्लस एक्स एंड टोटल टाइम दिस टाइम प्लस दिस टाइम, ये लग रहा है 5 आवर्स। अब यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, यहाँ से 15 8 जा 120 प्लस 15 एक्स, और ये 8 2 जा 176 माइनस 22 एक्स, ये इज इक्वल टू 5। यहाँ से 15 में 22 हो जाएगा माइनस 7 एक्स प्लस 6 9 2, ओके, इज इक्वल टू 5, और a प्लस बी a माइनस बी, 8 8 जा 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5 320 माइनस 7 एक्स प्लस 296 इक्वल टू 320 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस 5 एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, प्लस 5 एक्स स्क्वायर और माइनस 7 एक्स प्लस 296 माइनस 320 इज इक्वल टू 0। 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और इधर से 4, ओके, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 120 है, 120 दैट मीन्स ओके, a इज इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू माइनस 24, db स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 होल स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू माइनस 24 49 प्लस 24 5 जा 120 480, ओके। अब यहाँ से 9 2, ओके, एंड 9 2 5, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है 23 का स्क्वायर। अब हमारे पास x का वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो हेयर माइनस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 23 स्क्वायर बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 23 बाई 10। हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 7 प्लस 23 30 बाई 10 3, और x इक्वल टू 7 माइनस 23 16 माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस 16 बाई 10 8 बाई 5 रिजेक्ट, माइनस 8 बाई 5 रिजेक्टिंग, देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिस इज रिजेक्टिंग, ओके, hence a speed of a stream is equal to 3 kilometer per hour. And now in this way just I have completed the solution of question number 3. Question number 4 is here, the time taken by a person to cover 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in the return journey if he returned at a speed of 10 kilometer per hour more than a speed of going. What was the speed per hour in each direction? स्टूडेंट ध्यान से देखो, एक डायग्राम ड्राइंग बना करके आपको दिखाते हैं। ये है गोइंग, इसमें स्पीड लिया x किलोमीटर पर आवर। ये है रिटर्निंग,
इनके स्पीड हैं x + 10, ओके, किलोमीटर पर आवर। इनके जाने का टाइमिंग कहता है टाइम टेकन बाय पर्सन शुड कवर, और ये है 150 किलोमीटर। 2.5 आवर मोर देन द टाइम। इनके जो टाइम होंगे, टाइम क्या होते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। तो डिस्टेंस सेम है और स्पीड s1, डिस्टेंस सेम है, स्पीड s2, ओके, रिटर्निंग में। अब देखिए यहाँ से द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड मानते हैं, लेट स्पीड ऑफ, ओके, पर्सन व्हाइल गोइंग, तो गोइंग के टाइम इनका ये स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड स्पीड ऑफ द सेम पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन while रिटर्निंग, ओके, रिटर्निंग, इनके स्पीड है ज़्यादा, x + 10 किलोमीटर पर आवर। एज यू नो द डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब जाता है तब, तो दैट मीन्स टाइम टेकन इन गोइंग, गोइंग के टाइम में 150 बाय स्पीड है x, इतने आवर, एंड टाइम टेकन इन रिटर्निंग, ये हो जाएगा 150 बाय x + 10 आवर, ओके। कहता है कि 2.5 आवर्स मोर लगता है, क्योंकि स्पीड जो है इनका कम है और स्पीड ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि यह ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, 150 बाय x, ये टाइम ज़्यादा है, 150 बाय x + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 आवर्स। ये हमारा 5 5 जा 5 2 जा। अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन देंगे, 150 जो है वह कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से आएगा x + 10 माइनस x बाय x स्क्वायर + 10x इज इक्वल टू 5/2। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5 से 1 जा और 5 से 30 जा। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर + 10x इज इक्वल टू 2 10 जा 20, 30, 600 x स्क्वायर + 10x माइनस 600 0। यहाँ से x स्क्वायर + 30x माइनस 20x माइनस 600 0 आ गया। x कॉमन लेंगे, x + 30 माइनस 20 x + 30 इज इक्वल टू 0। दिस implies x + 30 into x minus 20 0. If we take x + 30 is equal to 0, that means x equal to -30, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रिजेक्टिंग एज स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, ओके। और x - 20 if 0, that means x equal to 20, so the speed in going direction is 20 kilometer. Speed in going direction is equal to 20 kilometer per hour, and speed in returning
is equal to 20 plus 10, that means 30 kilometer per hour. So just I have completed the question number 4th solution. Now students, question number 5, while boarding an aeroplane, a passenger got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangement to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes to reach the destination 1500, that means 1500 kilometer away in time. The pilot increased the speed by 100 kilometer per hour. Find the original speed per hour of the plane. So students, just I am going to start to make the solution. And first of all, we have to find the original speed per hour of the plane. Let it be considered x. Let original speed of the train, no train, plane, original speed of plane B, x kilometer per hour, and the distance is 1500 kilometer. Total distance to be covered, is equal to 1500 kilometer. This would be covered, but due to some reason, you see, one of the passenger got hurt. Then the pilot, showing promptness and concern, made arrangement to hospitalize the injured. Okay, so this time becomes late, 30 minutes late to reach the destination. That means where it is to be reached. So 1500 kilometer distance at the time of destination. Pilot increased the speed by 100 kilometer per hour. New increased speed is equal to x plus 100 kilometer per hour. Okay, with increased speed the time taken, and with original speed the time taken, these two time should be found. So time is equal to distance upon speed. So time taken in case first, is equal to distance 1500 kilometer by speed x, that is in hour, that is the scheduled time. But new time this would be less, and 30 minute, you see, the 30 minute time is less. Okay, because late started 30 minutes. So to cover this distance, so new time is equal to, that means in case second, is equal to 1500 by x plus 100 hour. As this time is 30 minute less, so according to question, 1500 by x minus 1500 by x plus 100 is equal to 30 minutes. That means 30 by 60 hour, 1 by 2 hour. You take LCM of this common 1500, 1 by x minus 1 by x plus 100 is equal to 1 by 2. Here LCM of x and x plus 10, x plus 100, x plus 100 minus x
is equal to 1 by 3000. This 1500 multiplied by 2 by cross multiplication. Just you see, x square plus 100x equals to this one, x square plus 100x minus 1 times 100,000, 10,000 lakh, 3 lakh is equal to 0. Okay, now you see a is equal to b equal to 100 and c equal to minus 3 lakh. 1 times 100, 1 times 100,000, 10,000 lakh, 1 times 100,000, 10,000 lakh. Okay, so just I observe that you have to found d is equal to b square minus 4 into 1 into minus 350. Okay, 10,000 plus 4 3s are 12. You see 1 2 4 0, 1 2 3 4, 1 2 1, this one. Now you have to find the value of x. Okay, x equals to minus b plus minus root d by 2a. That means minus b, minus 100 plus minus root 1 2 1 and 4 0 by 2 into 1. This is minus 100 plus minus 1100 by 2. That is either x equal to minus 100 plus 1100 by 2. That means 1000 by 2, 500. Another either or x equal to minus 100 minus 1100 by 2. Okay, so minus 600. Rejecting speed can't be negative. Okay, rejecting speed can't be negative. That means what is the speed, original speed? That means original speed, hence original speed is equal to 500 kilometer per hour. Okay, so students, just I have completed question number 5, in which the original speed per hour of the plane are to find, and it has completed the speed of the aeroplane is 500 kilometer per hour. Okay, before the injuring hurt of the passenger, one of the passenger. Question number 6 है, the angry Arjun carried some arrows for fighting with Bhishma. With half the arrows he cut down the arrows thrown by Bhishma on him, and with 6 other arrows he killed the Rath driver of Bhishma. With 1 arrow each he knocked down respectively the Rath, flag, the bow of Bhishma. Finally, with 1 more than 4 times the square root of the arrows, he laid Bhishma unconscious on an arrow bed. Find total number of arrows Arjun had. यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेने की ज़रूरत है कि टोटल अर्जुन के पास जितने एरोज हैं, उन एरोज में से भीष्म के साथ फाइटिंग करने में भीष्म के द्वारा थ्रोन किए गए जो एरोज हैं उनके ऊपर में अपना वो हाफ एरोज जो है भीष्म के द्वारा थ्रोन किए गए एरोज को कट डाउन में लगाते हैं। 6 जो है अदर एरोज से भीष्म के रथ ड्राइवर को मार डालते हैं। 1 एरो ईच से नॉक्ड डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म।
finally with one more than 4 times square root of arrows he laid Bhishma unconscious on an arrow bed। एक arrow bed बना देते हैं, arrow से बना हुआ, उस पर लिटा देते हैं भीष्म को। तो टोटल कितना अर्जुन के पास एरोज है? तो लेट कंसीडर करते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड, एरोज अर्जुन हैड, ओके, बी एक्स मान लेते। अब कितना नंबर ऑफ एरोज यूज हुआ? नंबर ऑफ एरोज यूज्ड, ओके, to cut down the arrows thrown by Bhishma, ये हो गया x/2। रथ ड्राइवर, भीष्म के रथ ड्राइवर को मारने के लिए कितने? तो 6 एरोज, 6 एरोज से रथ ड्राइवर को मारता है। नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू किल रथ ड्राइवर, ड्राइवर ये 6 है। फिर 1 ईच एरो से वह क्या करता है? रथ को, फ्लैग को, बो को तोड़ता है। So remaining number of arrows, other remaining number of, ऐसा लिखिए, other number of arrows used, okay, in this way 3। एक फ्लैग के लिए, एक रथ के झुकाने के लिए, और एक बो को काटने के लिए। और फिर कहता है फाइनली 1 more than 4 times the square root of arrows he laid Bhishma unconscious on arrow bed। तो नंबर ऑफ, ओके, arrows used to make arrow bed, make arrow का बेड ही बना दिए, जैसा कि आप महाभारत की कहानी से जानते भी होंगे। तो कहता है 1 more than 4 स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर से 1 ज़्यादा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सारा देखिए कि जितने भी एरोज हैं कुल मिला के x को इस सब में डाइवर्ट कर दिया। तो दैट मीन्स कि x/2 और उसके बाद +6 +3 +4 रूट x +1 मिला के कुल x है। अब यहाँ से 9 प्लस x/9 नहीं, 10, नॉट 9, 10 प्लस x/2 को आप उधर ले जाइए, इस x/2 को। तो 10 + 4 रूट x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस x/2। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस x/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 + 4 रूट x। या आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर x को y² मानिए। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगा? y²/2, दिस इम्प्लाइज, ओके, y²/2 + 10 + 4y, हेयर इज इक्वल टू सिंबल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? y² + 2 4 जा 8y, 8y + 20 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 8y माइनस 120 0 हो गया। अब देखिए y² और ये क्या आ जाएगा? -8y, ओके, हेयर 4x/2, ओके, 2 10 जा 28, ओके, 20 है, 2 10 जा 20 and this is 120, that is wrong। -10y + 2y -20
0. Here y minus 10 plus 2y minus 10. यहाँ से क्या आया, y plus 2 आया, y minus 10, ये इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने में y का एक -2, y का 10. आइदर y प्लस 2 अगर 0 तो y इज इक्वल टू -2. तो -2 दैट मीन्स आप देखिए यहाँ 4 तो नहीं हो सकता है. ओके, रिजेक्टिंग. ओके, एज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 दैट इज लेस देन द 6 से कम एरो. 6 तो खर्च हो जाता है इसी को किल करने में, रथ ड्राइवर को, तो 6 से कम हो नहीं सकता. तो और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y 10 हो गया तो x स्क्वायर हो जाएगा 100. और दैट मीन्स टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड हो जाएगा 100. सो स्टूडेंट्स, just I have completed 6 questions, and in this part of the video very fruitful for the students, and all the questions will be so important that students must like the questions. I request, appeal that you must see from start to end, and then it will be useful for you all students. Okay, have a nice day. Thanks for watching.